صلی علی سیدنا مولانا جہاں پہ اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کے رحمت کے فرشتے آگے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب تک وہ محفل چلتی رہتی ہے فرشتے اس محفل کو ڈھانپتے رہتے ہیں، اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رب العالمین فلاں بستی میں فلاں گاؤں میں فلاں میں فلاں آپ کے اور آپ کے محبوب کے ذکر میں مشغول تھے، لگے ہوئے تھے، تو اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے تھے؟ اللہ کو سب معلوم نہیں ہے، ہمیں آپ کو بتانے کے لیے اللہ گفتگو کر رہا ہے۔ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے تھے، تو سب فرشتے اپنی اپنی بات بتاتے ہیں کہ جو لوگ تھے کچھ بیمار تھے تو وہ آپ سے جو ہے شفا کی امید رکھے ہوئے تھے، کوئی بے روزگار تھا تو یہ امید رکھے ہوئے تھا کہ آج دعا ہوگی تو اس کے اندر جو ہے ہم اپنی روزی کے لیے دعا مانگیں گے۔ بہرحال یہ سب فرشتے اپنی اپنی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سب ایک ساتھ کہتے ہیں یا رب العالمین اس محفل میں جتنے تھے اپنی یہی خواہش تھی کہ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم لوگ گواہ رہنا، جتنے اس محفل میں آئے تھے ہم نے سب کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ایک فرشتہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رب العالمین ایک آدمی نہ اس محفل میں آیا تھا، نہ سننے کی غرض تھی، نہ اس محفل میں بیٹھا، خالی اس راستے سے گزرا تھا، آپ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہاں وہ محفل ہی میرے اور میرے محبوب کی ہے، جو اس راستے سے گزرتا ہے ہم اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آج الحمدللہ ہم آپ سب محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس محفل کے ذریعے سے ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، اور ہم نے قرآن کی آیت تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، توبہ یعنی خالص دل سے اگر تم توبہ کرو گے تو ہم ہماری سب گناہوں کو معاف کر کے ایسا بنا دیں گے جیسے ابھی ابھی ہم نے اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، یہ ہماری آپ کی کوتاہی ہے کہ ہم اللہ کے آگے جو ہے نہ جھکتے ہیں، نہ اللہ سے مانگتے ہیں، نہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم اپنی من چاہی زندگی کو جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے جو ہے آج ہمیں آپ کو ہر جگہ ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے صحابہ کرام رضوان دین اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، تو ہر جگہ جو ہے ان کی کامیابی ہوتی تھی۔ آج ہمارا آپ کا یہ حال ہے کہ ہم نے آپ نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے، جیسے ابھی حضرت نے فرمایا نماز کے بارے میں، ہر کوئی جو ہے سب سے پہلے نماز ہے۔ پیر کا دامن پکڑنا ہے، کوئی پیر جنت میں نہیں لے کے جائے گا، شرط یہ ہے کہ پیر کا کہنا مانتے ہوئے وہ جو راستہ بتا رہا ہے آپ کو، اللہ کے رسول کا راستہ بتا رہا ہے، اس راستے کو اگر آپ پکڑ لو گے تو آپ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر اپنی من چاہی زندگی گزارو گے تو کہیں آپ کو جو ہے کامیابی نہیں ملنے والی۔ ابو جہل حضور کو سب کچھ مانتا تھا، صحابہ کرام سے دوستی تھی، صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ تم حضور کو سچا بھی مانتے ہو، اللہ کے نبی بھی مانتے ہو،
बहुत दीनदार मानते हो, अमानतदार मानते हो, सब कुछ मानते हो, तो कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? तो अबू जहल ये कहता था कि बस यही तो बात है। अगर हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो फिर हमारी अपनी जिंदगी नहीं चलेगी, जो कलमे के मुताबिक जिंदगी होगी वो जिंदगी हमको छुड़ा देगी। और वो जिंदगी वही है जो हमारे नबी ने बताया, सबसे पहले वक़्त-उस-सलाह, नमाज को कायम करो। अगर नमाज को कायम कर लिया, नमाज की पाबंदी हो गई। नमाज को आज हम आप बहुत आसान समझते हैं। नमाज इतनी बड़ी चीज है कि अगर खाली हम आप नमाज के पाबंद हो जाए, नमाज की पाबंदी कर ले, नमाज को मजबूती से पकड़ ले, औरत मर्द बच्चे जितने, तो इंशाअल्लाह दावे से कहते हैं कोई मुसीबत, कोई बला, कोई चीज घर के अंदर दाखिल नहीं होती। इसकी बड़ी बड़ी मिसाल है कि एक नमाज की बरकत से अल्लाह ने उस घर को कितना नवाज दिया। एक दफे एक साहबी हुजूर के पास जाते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह, घर के अंदर जो है फाकरकशी चल रही है, घर में खाने को कुछ नहीं है, आप कुछ हमारी मदद फरमा दीजिए। अब देखें हमारा आपका तो अकीदा ये है कि हमारे नबी अगर ऐसे मट्टी भी उठा के दे देते तो वो सोना बन जाता कि नहीं बनता? बोले बनता कि नहीं बनता? मगर हमारे नबी ने कहा कि नहीं, घर जाओ, घर जाके वजू करो, वजू करने के बाद सलातो हाजत की नमाज पढ़ना शुरू करो, अल्लाह तुम्हारी मदद। वो आप साहबी घर जाते हैं, जाने के बाद जो है वजू करते हैं, सलातो तस्बीह की शरीफ पढ़ा हुआ। साहबी घर जाते हैं, घर जाने के बाद वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद नमाज पढ़ने लगते हैं, कुछ रकात नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेंकते हैं, बीवी से पूछते हैं कि कुछ आया? बीवी कहती है कि नहीं कुछ नहीं आया। फिर उसके बाद फिर कुछ रकात जो है नमाज पढ़ने लगते हैं, फिर बीवी से पूछते हैं कि कुछ आया? बीवी ने कहा कि नहीं कुछ नहीं आया। फिर उसके बाद जो है फिर कुछ रकात नमाज पढ़ने लगते हैं, फिर सलाम फेंकते हैं, बीवी से पूछते हैं कुछ आया? बीवी कहती है कि हाँ, घर पहले जमाने में जाता होता था, जाता चल रहा है और घर जाते में से आटा आ रहा है। तो वो साहबी जो है पूरा अपना बर्तन जितना होता है वो उससे जो है आटे से भर लेते हैं। उसके बाद उनके दिल में ख्याल आता है कि ये आटा आ कहाँ से रहा है, इसको देखा जाए। तो जैसे वो जाता उठाते हैं, आटा आना बंद हो जाता है। उसके बाद जो है जाते हैं हुजूर के पास, कहते हैं या रसूलल्लाह, आपने ऐसे ऐसे बताया था कि ऐसे ऐसे नमाज पढ़ो तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। हम नमाज पढ़ने लगे, कुछ देर के बाद जो है जाता चक्की चलने लगी, जाता चलने लगा, उससे आटा आने लगा। और उसके बाद जो है हमने जब उठा के देखा तो आटा आना बंद हो गया। तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम जाता उठा के ना देखते तो क़यामत तक उस चक्की से आटा आता है। अब देखें कि एक नमाज की बरकत से घर के अंदर जाता चलने लगा और इतनी बरकत हुई कि सब कुछ हो गया। ऐसे ही बाबा फरीद शंकर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुना होगा कि उनकी माँ ने जो है उनको नमाज के लिए कहा कि नमाज पढ़ो, अल्लाह तुमको जो है चीनी अता फरमाएगा, शक्कर देगा। अल्लाह शक्कर देते हैं, मीठे के बहुत शौकीन थे। वो नमाज पढ़ने लगे, उसके बाद माँ पुड़िया बना के उनके से दाने रख देती थी। जब सलाम भेजते थे तो देखते थे कि चीनी मिलती थी पुड़िया की। फिर उसके बाद एक दिन उनकी वालदा मोहतरमा जो है कहीं चली गई। जब वहाँ पे वो वज़ू करने लगी तो उनके ज़हन में आया कि अरे आज फरीद जब नमाज पढ़ेंगे और मुसल्ला उठाएंगे तो देखेंगे चीनी नहीं है, तो सोचेंगे कि माँ यहाँ पर रहती थी तो हो सकता है कि माँ रखती थी। तो अल्लाह
को जो है फरीद की हिफाजत फरमाइए कि उसकी नमाज ना छूटे। उधर माँ ने दुआ किया, इधर जो है उन्होंने नमाज पढ़ी और जब सलाम फेरा तो वैसे ही खुशियाँ मिली जैसे जो है माँ के ज़माने में मिलती थी। खाया जब माँ आई, माँ ने पूछा कि बेटा आज नमाज पढ़ी? कहने का हाँ पढ़ी, मगर माँ आज जो चीनी हमें मिली, जो शक्कर मिली, वो इतनी मीठी थी, इतनी अच्छी थी कि जिसकी इंतहा नहीं, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो माँ ने जो है अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो यहाँ पे ये देखिए आप, बताना मकसद इस वाक़े का ये है कि नमाज की बरकत से जो है अल्लाह ने जन्नत से चीनी भेज दी है बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह। अगर हम आप पाँचों वक्त अगर नमाज के पाबंद हो जाए तो जो हम मांगेंगे वो हमको मिलेगा। वहाँ तो बगैर मांगे मिल गया, माँ ने दुआ की। इसीलिए कहते हैं कि माँ अपना दुआ दिया करो। आपको जितने लोग हैं यहाँ के, माँ को अगर राजी कर लोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। माँ अगर राजी होती है तो अल्लाह राजी हो जाता है, और माँ अगर नाराज है तो अल्लाह भी नाराज होता है। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो हमारी यहाँ जो है क्या हाल है। हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम हज़रत उमर बैठे हुए हैं और भी सहाबा किराम हैं। हुज़ूर ने हज़रत उमर से इरशाद फरमाया कि उमर, तुम्हारे दौर खिलाफत में एक उवैस करनी आएगा यमन का, जब वो आए तो उसको ढूंढ के हमारी उम्मत के लिए दुआ करवा। अब आप सोचें कौन कह रहा है? हुज़ूर कह रहा है, जो कि हर वक्त अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे और अल्लाह को राज़ी कर लिया कि हमारी उम्मत की मग़फ़िरत हो। वो हुज़ूर कह रहा है हज़रत उमर से। तो हज़रत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, वो कौन आदमी है उवैस करनी जिससे जो है हम आपका जो है आपकी उम्मत के लिए दुआ करवाए? तो हमारे नबी ने कहा कि उवैस करनी वो है, उसने अपनी माँ को इतना राज़ी किया है, इतना राज़ी किया है कि जब उवैस करनी हाथ उठाते हैं तो अल्लाह लब्बैक कहता है तो उनकी दुआ को कबूल करता है। अब देखिए कि यहाँ पे कितनी बड़ी बात उन्होंने फरमाई। इससे क्या पता चलता है कि अगर तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे और माँ को अगर राज़ी कर लोगे, माँ की हर वक्त दुआ लेते रहोगे, तो जो भी दुआ माँ तुम्हारे लिए मांगेगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन कबूल फरमाएगा। तो ये है हमारी आपकी जिंदगी। हमने आपने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, मगर उसके ऊपर अमल नहीं। सब बेनमाज नमाज के लिए जो है कोई चिंता नहीं है और कोई एक दूसरे को बोलता भी नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे बताए कि शादी होती है, बारात जाती है, दूल्हा बैठता है सामने, काजी साहब रहते हैं, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब रहते हैं, सरदार मंगल रहते हैं। वो मौलाना साहब निकाह पढ़ाते हैं। तो निकाह में क्या पढ़ाते हैं कि ये लड़की हमने तुम्हारे हाथ में दिया, तुमने कबूल किया? बोले भाई यही करते हैं ना। अच्छा निकाह हो गया, वो लड़का घर में लड़की को लेके जाएगा और फिर उसके बाद ना उसको खाना दे, ना पानी दे, ना उसको जो है कपड़ा लत्ता दे। फिर जब उसकी औलाद हो जाए तो औलाद को भी कपड़ा लत्ता ना दे, फिर ना उसकी लिखाई पढ़ाई करे, ना शादी ब्याह करे। तो समाज और वो लड़की खुद कहेंगे समाज वाले कि भाई ने निकाह किया है, इसका खर्चा तुम्हारे ऊपर है, इस लड़की का पूरा खर्चा तुम उठाओ, है ना भाई? आप लोग बोलिए तो सब समझ में आएगा आपको समझ। तो दूसरे सरकार मंडल कहेंगे कि भाई आप जो है इसका खर्चा उठाओ। तो वो आदमी अगर कहे कि मौलाना साहब, अरे सरदार या मंडल या निजाम के जो लोग भी थे या मौलाना साहब भी हैं, आप चलो मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब ने जितने भी लोग थे सरदार मंडल जो भी बराती गए थे उनके सामने क्या इमाम साहब ने, मुफ्ती साहब ने ये कहा था
कि इसको शादी करके घर ले जा रहे हो, इसको कपड़ा देना होगा, इसको 3 टाइम खाना देना होगा, इसकी जेब खर्च देना होगा, फिर कल को उसको बच्चा होगा, वो बच्चे का पूरा खर्च उठाना होगा, फिर बच्चे की पढ़ाई करनी होगी, फिर बच्चा बच्चियों की शादी करनी होगी। क्या मुफ्ती साहब ने या हमको पढ़ाया था? तो सब लोग सरदार मंडल पूरा समाज यही कहेगा कितना बड़ा फाल है कि जब उसने 3 बार किया उसी में सब कुछ हो गया। ये होता है भाई, अलग से तो नहीं होता। तो सब लोग उसको बेवकूफ बनाएंगे कि कितना बड़ा बेवकूफ है कि जब मुफ्ती साहब ने निकाह पढ़ा दिया अच्छा तो 3 बार कबूल किया, उसी में सब कुछ हो गया। तो उस आदमी को लोग बेवकूफ कहेंगे कि ये निकाह का मतलब नहीं समझ रहा है। मगर आज हम आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े हुए हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोजा नहीं रखते, हम माँ बाप की खिदमत नहीं करते, हम जो है तो हराम हलाल की पहचान नहीं करते, हम शराब पीते हैं, हम जुआ खेलते हैं, हम हर गंदा काम करते हैं, मगर कहते हैं कि हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े हुए हैं। ये जिंदगी नहीं है जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो ना हमको शराब पीना होगा, ना हमको जुए की तरफ देखना होगा, ना हमको हरामकारी करनी होगी, माँ बाप की खिदमत करनी होगी, हमको नमाज पढ़ना होगा, हमको रोजा रखना होगा, अल्लाह तौफीक अता फरमाए तो हमको ज़कात देना होगा, समाज के साथ अच्छे सलूक करना होगा। जब हमारे ऊपर जो है तो दाढ़ी रखनी होगी, दाढ़ी से मुसलमान की पहचान होती है। यहाँ ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाए हुए है, इस वजह से इसके लिए जो है दाढ़ी रखे हुए हैं। दाढ़ी एक सुन्नत है, अगर सुन्नत पे अमल करोगे तो जो है हुजूर खुश होंगे, हुजूर खुश होंगे। जैसे हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक। अभी शाम से हम सुन रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा जलसा हुआ। आप लोग भले ही आदमी कम है तो उससे क्या हुआ, सवाब नहीं मिलेगा। तो शाम से देख रहे हैं नारा लग रहा है, सब हुजूर के दीवाने हैं, नबी के दीवाने है कि नहीं? हाथ उठा के बोले सब है ना दीवाने। तो ये कैसी दीवानी है कि यहाँ पे वही किस्सा हो गया कि एक लड़का पूरे गाँव में घूम के कहे कि हम अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं। समझ आए ना मेरी बात को? पूरे गाँव में जहाँ जहाँ हम अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम अपने बाप से मोहब्बत करते हैं। और जब वो लड़का घर जाए और घर गया और बाप ने कहा बेटा एक गिलास पानी पिला दो, तो लड़का कहे हमें पिला दो ना, समझे? हम नहीं दे सकते, हमारे पास टाइम नहीं, हम दे नहीं सकते। तो ये बताइए उसकी मोहब्बत काम आई? तो पूरे गांव में चर्चा कर रहा है कि हम अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, हम अपने बाप से मोहब्बत करते हैं। और घर गया और एक गिलास पानी मांगा तो कह रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं। तो वैसे ही आज हम लोग पूरा चर्चा करते हैं नबी का, नबी के दीवाने हैं, नबी के लिए जान दे देंगे। मगर जब उनका हुक्म मानने का आएगा और उनको आराम पहुंचाने का वक्त आएगा तब हम लोग हाथ में डंडा हो जाएगा। जैसे हमारे नबी ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कहा ना, बोलिए मालूम है कि नहीं जी? है ना, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब जब हम गुनाहगार जब नमाज पढ़ेंगे तब तो हमारे नबी को ठंडक पहुंचेगी। और जब हम लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारे नबी को ठंडक पहुंचेगी, उनको आराम मिलेगा? आज हम कहाँ कोई चीज पे अमल नहीं है, खाली कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ दिया, नारा लगा दिया, बस हम लोग पक्के मुसलमान हो गए। दायका में पक्के मुसलमान, ये पक्के मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो थे कि एक खजूर कई सहाबा खाते थे और अपने नबी के दीन को, अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए नबी के साथ गर्दनें कटवा रखा, वो मोहब्बत थी सहाबा इकराम। आज हम लोग उनके पैर के ठोकर भी नहीं है। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो हमारे आपके दिल में आया, जो
जुबान से हम लोग अदा करते हैं तो हम लोग समझते हैं कि थाली के अंदर, थाली जानते हैं ना, थाली के अंदर सजा के नहीं दिया गया। जैसे आप कहीं मेहमान जाए, बहुत सी चीज घर वाले बजा के आपको ला के रख देंगे, आप 10 मिनट 15 मिनट में खा के खत्म कर देंगे। वो औरतों से पूछो जो वो 10 चीज बनाने में पूरा दिन लग गया, लगा के नहीं, हाथ उठा के बोले लगा के नहीं लगा, बात माना मैं तो हम बताएं। गर्मी के दिन में अगर कोई मेहमान आ जाए तो 10 आइटम बनाने में उस औरतों से पूछो कितनी मेहनत लगी है, पूरा पसीना निकलता है कि नहीं। खाने वाले का कुछ नहीं, खाली खाली चलेंगे, खा लिया 10 मिनट में हो गया। वैसे ही आज हम लोग हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब उसकी जिम्मेदारी साहबा इस्लाम से पूछो, हमारे नबी के नवासों से पूछो जिन्होंने करबला में उनको बचाने के लिए गर्दन कटा दी, मगर जो है गर्दन झुकाई नहीं। और गर्दन कटाई भी कहाँ, सज्जे के अंदर कटाई, दिखलाने के लिए कि ये मेरे नाना की उम्मती देख लो, जब वक्त आए तो ये मत सोचो कि अभी नमाज अदा करना है या पढ़ना है, जब वक्त आए तो अदा कर दो, बाद में अल्लाह देखेगा गर्दन बचेगी या नहीं बचेगी। सुभान अल्लाह। ये दीन है, ये कलमा है। साहबा इकराम खाने को नहीं खा, मगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए मेहनत करते रहे। जवान जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ दिया तो वो सच्चा अल्लाह को मानने वाला हो गया, सच्चा दीन पे चलने वाला हो गया, जिसके जरिए से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा अपने नबी का, सच्चा प्यार करने वाला हो गया, सच्ची मोहब्बत करने वाला हो गया, उनकी एक एक सुन्नत पे अमल करने वाला बन जाओ, तब सच्चे जो है मुसलमान कहलाओगे। हम लोग मुसलमान तो हैं, मोमिन नहीं है। मोमिन उस वक्त होंगे जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को दिल में उतार के एक एक अमल जो उस कलमे के जरिए आता है उस पे अमल करना होगा। अपनी मन चाही जिंदगी नहीं गुजारनी होगी कि जब चाहा जो है नमाज पढ़ लिया, जब चाहा छोड़ दिया। किसी ने बुलाया कहिए चल के आ जाओ, 10 लाख का जो है या 10,000 का जो है फायदा हो जाएगा। अगर जोहर का टाइम होगा तो हम जोहर छोड़ देंगे, असर का टाइम होगा असर छोड़ देंगे कि वो 10,000 रुपये हमको मिल जाएगा। अगर हम टाइम तक नहीं पहुंचेंगे तो हो सकता है कि वो 10,000 जो है वो चला जाए। वो 10,000 देने वाला कौन है? रब की इबादत छोड़ के जा रहे हैं, वो तो अल्लाह की मेहरबानी है। और हम लोग अपने नबी के इतने चाहने वाले उम्मती हैं कि उनके सदक़े में हम आप बचे हुए, वरना इतना जो है नाफरमानी अल्लाह की कर रहे हैं कि हुजूर से पहले जितने नबी आए उम्मतियों ने नाफरमानी की, अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। ये अपने नबी का सदका है कि हम आप बचे हुए हैं, वरना उन उम्मती से, उन उम्मतियों से ज्यादा गुनाह आज हम आप कर रहे हैं। तो इसको समझना होगा मेरे भाई कि हम लोग दुनिया में आए हैं, 60, 70, 80 साल की जिंदगी है। वो जिंदगी को हम अपनी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक गुजारें। अगर उसके मुताबिक अगर हम गुजार लेंगे तो हमारी कब्र भी अच्छी हो जाएगी, हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, हमारी दुनिया भी अच्छी रहेगी। हमें यहाँ पे भी किसी भी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा, इसलिए कि जब अल्लाह के आगे सर झुका दिया और अल्लाह के आगे हाथ उठा दिया तो वो रब इतना प्यारा है, इतना रहीम है, इतना करीम है, कहता है कि जो बंदा हमारे आगे हाथ फैलाए है उसका हाथ उसकी जिंदगी में कभी दूसरे के आगे हम फैलने नहीं देंगे। ऐसा रब गैर से ऐसी रोटी देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको अपने रब से दोस्ती तो करो, अपने रब की बात तो मानो, अपने रब के बतलाए हुए रास्ते में चलो। तो भाई ध्यान में वही पास होता है जो मेहनत करता है। जो बच्चा मेहनत करेगा, ये दुनिया में भी मिसाल है, जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा उसको उतना
जो बच्चा स्कूल जाए काफी मिले वो देख के बंद करके चला जाता है, खाली साइन कर दिया, क्या टीचर उसको कोई नंबर देंगे, सीधे सीधे ऊपर को फेलता है। ये एग्जाम्पल है हमारी आपकी, समझ जाओ इंसानों अभी भी वक्त नहीं गया है, जितनी भी उम्र हुई हो या जो बच्चे हैं औरतें हैं अल्लाह का कहना मानते हुए अपनी जिंदगी गुजारना, औरतें हैं औरतों के ऊपर पर्दा फर्ज है, उनको चाहिए कि पर्दे के अंदर रह के काम करें, सर ढाक के घर में रहें, देवर है ससुर है फलाने हैं ठिकाने हैं दुनिया भर के रिश्तेदार हैं उनके सामने सर ढाक के रहें। अगर सर ढाक के रहेंगे पर्दे में रहेंगे तो इंशाअल्लाह घर में बरकत होगी। आज हर आदमी आता है कहता है हुजूर हमारे घर में बरकत नहीं है, बरकत कैसे होती है? बरकत होगी जब घर में नमाज होगी, रोजा होगा, अल्लाह का जिक्र होगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुरान में वला तक़ुल्लाहि अकबर, मेरा जिक्र सबसे बड़ा है, सबसे बुलंद है। अल्लाह का जिक्र करो, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो। जब अल्लाह का जिक्र करोगे तुम्हारे पास फरिश्ते रहेंगे, हर वक्त हिफाजत फरमाएंगे। और जब अल्लाह का जिक्र करोगे तो अल्लाह आगे फरमाता है बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। जब हम जिक्र करेंगे अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह हमें याद करेगा। अल्लाह का याद करना क्या है कि हमारे ऊपर अल्लाह बला मुसीबत आने वाली अल्लाह खत्म कर देगा, कोई बीमारी आने वाली है उसको अल्लाह खत्म कर देगा, रोजी की तंगी है उसको अल्लाह खत्म कर देगा, कोई परेशानी आने वाली है अल्लाह उसको खत्म कर देंगे। ये है अल्लाह का याद करना। और सबसे पहले जितने लोग हैं यहाँ पे सबसे यही कहेंगे कि नमाज के पाबंद बन जाओ। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी है ईमान वालों तौबा करो अल्लाह की तरफ तौबा नसूह। यानी अगर हम आप खालिस दिल से जितनी भी गुनाह किया हो, जितनी भी गुनाह किया हो, अगर सच्चे दिल से हम आप तौबा कर लेते हैं अस्तगफिरुल्लाह तो अल्लाह हमारी आपकी गुनाहों को सब खत्म करके ऐसा बना देता है जैसे अभी अभी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब लोग इस्तग़फ़ार पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ के जो है अल्लाह से तौबा करें और दौड़ लगाएं कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें आपको तौफीक दे कि हम लोग आगे से कोई गुनाह ना करें और हमारी आपकी ज़िंदगी करना ला इलाहा